हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं मुजफ्फर और इकबाल। भाई देखने जा रहा है मेजर गौरव आर्या एक्सपोज पाकिस्तान। वीडियो काफ़ी बेकमाल की है। मैं आज आपकी शो पे उनका मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूँ कि सीजफायर होल्ड कर ही नहीं सकता. There will be violence between India and Pakistan again. We must understand that Pakistan is an enemy state. Blood will flow. Whether it flows this side of the border or that side of the border is a choice that India needs to make. India, on the other hand, has a no first use policy. We don't attack unless we are provoked. इज्जत ताकत की होती है, इज्जत मोरालिटी की, इज्जत अच्छे बन के नहीं होती. ये तो शर्म की बात है कि अटैक नहीं करा. आपका काम और क्या, अटैक करो ना उसको. तुर्की दुश्मन है, अजरबैजान दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन है, और ये दुश्मन रहेंगे. फौज में गलती माफी का स्कोप नहीं है. मैं तो गलती से एक बार चला गया था पीओके. पकड़े नहीं गए ना? I was stabbed. My stomach was cut open. There was a guy who put a gun to my head. So I took the beating in silence. ये मेरे ये दांत वांत ऊपर सब तोड़ दिए लोगों ने. And they threw me in a ditch and then I crawled out. ये फट गया ना ये. बार-बार मुझे लंग की प्रॉब्लम हो रही थी. एक बार तो मैं पहाड़ से गिरा. आप बाहर से गिर गए. उसके बाद कितने टाइम तक you remained unemployed or did odd jobs? I struggled a lot. इधर अट्टा बाजार में वेलवेट बेचता था. I removed my rank because मुझे ऐसी शर्म आती थी कि लोग बोलेंगे कि भारतीय सेना का अफसर ऐसे काम कर रहा है. The security guard says you can't take that. Your heart says that. There was a time when you commanded 120 men along the line of control. You faced off against the Pakistani army. है कौन जो मुझे ऐसी बात कर रहा है उससे? When you see failure ना, while it gives you an understanding, it also leads to a lot of bitterness. News channels पर चिल्लाकर बोलना. Do you think that is often criticized? Yeah, it is criticized and a lot of people from India don't like what I say and also the way I say it. मुझे वही आता है. विजय, how do you verify news? और कैसे वेरीफाई करोगे? आप शहबाज शरीफ को बोलोगे कि तू गीता पे हाथ रख के कसम खा के जो कहेगा सच कहेगा. और मैंने क्या गलत न्यूज दे दी है? लड़ाई में फेक न्यूज होती है. Is that not risky? When you entered the office आपने देखा होगा. The police protection. I constantly receive death threats from Khalistanis, from Pakistanis, and now of course latest is that the Iranians it seems don't like me any longer. So आप नहीं डरते? डर तो सभी को लगता है ना. 48 घंटे के अंदर हनुमान चालीसा सीखनी लाइन ऑफ कंट्रोल में. जो मैं कर रहा हूँ वो मैं देश हित में कर रहा हूँ. आई एम नॉट द काइंड ऑफ अ गाय हु विल डाई इन हॉस्पिटल बेड. मेरा काम सड़क पे होगा किसी कोने में. नमस्ते, मैं हूँ काम्या जानी और संदेश से आते हैं कि इस एपिसोड में आपका स्वागत है. Today we are going to be talking about a subject that all of India is passionate about, and that is the safety of our nation. आज हम मिलेंगे उनसे जो खुद बॉर्डर पर अपना फर्ज निभा चुके हैं. Retired Army Officer Major Gaurav Arya. You've probably seen him on news channels voicing his thoughts passionately about the country. But today we go beyond the screens and find out about his personal journey. What made him wear the uniform and where does this fierce patriotism come from? Let's go to his office, Chanakya Forum, and find out more. Hello Major Arya, how are you? Hello ma'am, welcome to Chanakya Forum. Wow, it's a lovely office as I can see. It's a small office, but I'm glad that you liked it. This is our main conference room, Okay, and it's called Rizangla. Rizangla represents the battle honor of 13 Kumar Regiment. okay. Major Shaitan Singh, Battle of Rizangla, where we fought the Chinese in 1962. This is our small newsroom. So this is Dharma Rakshati Rakshita. So Dharma protects those who protect Dharma. So the path of righteousness. This is, I want to send it to the Ministry of Finance. Okay. From the strength of the treasury, the army is born. This is what Chanakya said. Is there a reason why you've called your firm as Chanakya Forum? Chanakya was the first Indian who imagined this concept of a unified Bharat in the face of the Greek invasion. He was the person who got everybody together and he says you must be united. Or his thoughts are the driving force behind our organization. In the month of December, in 1971, we fought against the Pakistan army and we defeated 2 units of the Pakistan army and they surrendered to us at Bhaduria. Bhaduria is now in Bangladesh. Yeah. So earlier East Pakistan. So this is the Battle of Bhaduria. And So hints of army life still exist in the way of your working, even in the corporate world. yeah, it's I very, know that we are not as disciplined as the army. even when we leave the army doesn't leave us. It's still inside somewhere. So yeah,
This is a map that we have. तो इनमें से हमारा फ्रेंड कौन है, हमारा दुश्मन कौन है? फ्रेंड कोई भी नहीं है, दुश्मन ये है और दुश्मन ये है। दोस्त जो आपका है, फ्रेंड और रिलायबल पार्टनर, योर रिलायबल पार्टनर इज दिस इज द स्टेट ऑफ इजराइल, दिस फ्रांस, these are reliable long term partners. पर अभी आप पंक्चुअल रहते हैं जहाँ जाते हैं। मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ। शॉपिंग के लिए भी जाएंगे तब भी। I don't know, I start feeling very uncomfortable that I've done, मैंने कुछ गुनाह कर दिया है, मैंने बहुत कुछ क्राइम हो गया बस। And it's all in the head actually, ऐसा कुछ है नहीं। I mean आप मॉल जा रहे हो। हाँ जी। ठीक है, you're going to the mall or you're going to South X or you're going to Connaught Place for shopping, but वो चीज़ है कि मेरे साथ I get very uncomfortable, थोड़ा सा डिले हो जाता है। That's all thanks to the army. Welcome, this is my kitchen. This is where I sit. यहाँ पे शिव परिवार है और यहाँ पे फादर की फोटोग्राफ है। I'm sure he must be feeling very proud of you. Yes, I with do. all your achievements. What is more satisfying, your army job or what you're doing now for the country? Not the army any day. There's something that I'll always carry with me with a great deal of pride. Yeah. So yes. How are you assessing the relationship or the situation between India and Pakistan? पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे ऑफिस आए। It's a pleasure to host you. पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है और जब तक आपके पास पैसा नहीं है आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। War is also a function of economics. It's also a function of money. बिना पैसे के आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। अगर कोई सोचे कि हमारे पास सिर्फ जज्बा है और that is like saying that my car does not have gas, only fumes and I'll run a race on fumes of petrol. It doesn't work like that. तो खैर पाकिस्तान ने कोशिश करी, फिर पाकिस्तान पैरों पे लेट गया अमेरिका के, और पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी गया, वहां पे भी उसने नॉन परमानेंट मेंबर है पाकिस्तान, टर्न बाय टर्न होते हैं, तो पाकिस्तान ने फिर जाके वहां पे अपनी गुहार लगाई और उनसे भी पाकिस्तान को फटकार पड़ी। क्या तुम बताओ ये लश्कर तैयबा का क्या चक्कर है, तुम ये बताओ कि तुम लोग न्यूक्लियर सेवर रैटलिंग इतनी क्यों कर रहे हो, तुम्हारा इंटेंट क्या है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान को काफी डांटा डांटा। ट्रंप को ये ओपनिंग दिखी, पाकिस्तानियों ने अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच करा, और क्योंकि ट्रंप ने इतने फेलियर देखे थे, कोई उसकी बात नहीं मान रहा था, तो ट्रंप ने बोला ठीक है। ट्रंप लिसन, 3:30 बजे पाकिस्तान ने इनिशिएट करा कॉल टू आवर DGMO, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, जो कि कुमाऊं रेजिमेंट के हैं। वी फेल्ट एट दैट पॉइंट इन टाइम कि हमने पनिश कर दिया है पाकिस्तान को जितना हमने करना था। लोगों के दिल में रह गई थी हसरत कि और थोड़ा होना चाहिए था, मेरे खुद के दिल में हसरत थी कि अभी कुछ 10-15 दिन मरम्मत और होनी चाहिए, लेकिन वो हुआ नहीं और सीज फायर हो गया। उसके बीच में क्या हुआ कि चाइना का प्रेशर आया पाकिस्तान के ऊपर। एक बात आपके जितने भी दर्शक हैं वो भी समझ लें कि पाकिस्तान ऐतिहासिक तौर पे एक डबल गेम खेलता है और वो पाकिस्तान का सेकंड नेचर है। जब आज की तारीख में पाकिस्तान कहता है कि रूस हमारा दोस्त है, लेकिन 1979 और 89 के बीच में पाकिस्तान के मदरसों में जो जिहाद पढ़ाया गया वो रूसियों के खिलाफ पढ़ाया गया था, जबकि वो रूसी अफगानिस्तान में थे। USSR हुआ करता था उस वक्त, सो दे वर इन अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान तब से डबल गेम खेल रहा है। तालिबान से पैसा लेके अमेरिकन सोल्जर्स को मरवाया, अमेरिकन सोल्जर से पैसा लेके तालिबान को मरवाया, ये सारा काम पाकिस्तान करता चला है। पाकिस्तान ने यहाँ पे भी डबल गेम खेला, चीन को बताया नहीं, अमेरिका के पैर पे लेट गया, वहां पे अमेरिका के पैरों पे लेटा, सीज फायर के लिए अग्री कर गया, वहां से चाइना का प्रेशर आया पाकिस्तान के ऊपर कि पैसा ले लो, ड्रोन ले लो, हथियार ले लो, सीज फायर मत करना, इंडिया के ऊपर प्रेशर डालो। पाकिस्तान ने 4-5 घंटे के अंदर फिर से सीज फायर वायलेट कर दिया, जिसको पाकिस्तान ने प्रॉमिस करा था, और हमारे मीडिया ने कवर करा है, ड्रोन आ रहे हैं, सब दिखावा। मैं आज आपकी शो पे जिसको कहते हैं, मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूँ कि दिस विल नॉट होल्ड, ये सीज फायर होल्ड कर ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल। कोई बोल दे कि शांति हो जाए, देयर विल बी वायलेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अगेन। कारण क्या है? पाकिस्तान इज अ मर्सनरी स्टेट। आपको पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेड़ा गर्क हो रखा है। पाकिस्तान को अमेरिका की मदद चाहिए IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन्स के लिए, ठीक है? इट्स अ चुंगी नाका स्टेट। तो वो पैसा कैसे कमाते हैं? आपने कभी देखा मेड इन पाकिस्तान का फ्रिज है या कोई कार है या कोई मोटरसाइकिल है या कोई कपड़ा? वो कुछ तो नहीं बनाते पाकिस्तानी। दे मेक नथिंग एट ऑल। हाउ डू दे मेक मनी देन व्हेन दे डोंट मैन्युफैक्चर, दे डोंट हैव एनी सर्विसेज? सीज फायर उन्होंने अमेरिकन से बेग करा, फिर वो अमेरिकन से कंसेशंस भी मांगेंगे। सीज फायर के 24 घंटे पहले IMF अनाउंस करता है कि हम तुम्हें लोन भी दे देंगे $2.4 बिलियन का। यू सी, तो ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं बैकग्राउंड में। पाकिस्तान फिर आपके ऊपर हमला करेगा, आपसे मेरा मतलब है भारत के ऊपर। अलग अलग जगह जहां तक ये कर सकता है पाकिस्तान आपको नुकसान पहुंचाता रहेगा। Pakistan has pretty much done whatever it felt like, and after it got the nuclear bomb, Pakistan thought that it had a blank check and it could do anything. It could do 26/11, it could do the parliament attacks, and there was pretty much nothing that people could do about it. It gave Pakistan, a stick to terrify the world with, that listen, we are a nuclear power and something goes wrong. So I was giving an example to my team about Pakistan's behavior. If you've seen Sholay,
शोले में वीरू चढ़ता है ना टंकी के ऊपर, ही इज ड्रंक, सो वाटर टैंक के ऊपर, और कहता है कि बसंती से शादी करवाओ वरना अगर मैं मर गया, मैंने सुसाइड कर लिया तो यहाँ पे गांव में हैजा हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, लोग मर जाएंगे. दैट इज पाकिस्तान. सो पाकिस्तान शराब पी के वाटर टैंक पे चढ़ेगा, फिर पाकिस्तान गलती करेगा, और जब लोग बोलेंगे गलती क्यों करी तो कह रहा है कि देखो अगर मैंने ये कर दिया तो फिर मेरे पास अटम हो. इट इज द सेम वीरू जस्टिफिकेशन. A drunk man on a water tank. India, on the other hand, has a no first use policy. Yes. Also, we don't attack unless we are provoked. Ma'am, I think our thinking is wrong. There is a word in Sanskrit called Shatrubodh, the understanding of an enemy. So we should decide if Pakistan is a friend or Pakistan is an enemy and keep it binary, 0 or 1. Either Pakistan is a friend. If Pakistan is a friend, okay, Pahalgam, okay, 26/11, it's a friend and we must maintain good relations. If it's an enemy, then do not wait for a Pahalgam to punish Pakistan. See, I'm not talking about war. What I am saying is being in an unending frame of conflict with Pakistan. Today we say that we're going to block their channels or we're going to block their Twitter handles. That should have been done ages back. Send all the Pakistanis back to Pakistan. Why are they here in the first place? Block the Indus water. Well, you should have done it years ago. Shatrubodh. And this is not the first time Pakistan is doing terrorism. Thousands of people have died. Civilian deaths apart, 1993 Mumbai apart, 26/11 apart, Pahalgam apart. There are so many instances. If you go to the National War Memorial in Delhi, you'll realize that how many of our soldiers have we lost. If you go to the National Police Memorial, you'll see how many policemen we've lost fighting against Pakistan-sponsored terror. We do not have Shatrubodh. We don't have the concept of an enemy. Pakistan has Shatrubodh. And that is exactly what General Asim Munir was saying in his speech. General Asim Munir says that we are different from the Hindus, and that is the foundation of the two-nation theory. I am not saying he's right. This is not a Hindu-Muslim issue. This is the India-Pakistan issue. And we must understand, we must have Shatrubodh to understand that Pakistan is an enemy state, irrespective of the fact that as of that day, Pakistan is doing terrorism against us or not. We should consistently and constantly inflict punishment upon Pakistan. It does not matter if they are peaceful. For the past 78 years, blood will flow. Whether it flows this side of the border or that side of the border is a choice that India needs to make. We are reactive people. We are reactive by nature. And this whole thing that we said that we have never attacked anybody. This is the problem with us, that we have never attacked anybody. And I fail to understand why haven't we ever attacked anybody? What's wrong with us? The army is certainly not ceremonial. The armed forces are certainly not ceremonial. And the world has seen the capabilities that we have. So exercise those capabilities. Bhai bin hoye na preet is a very popular quote. Bine na mara jalad jad gaye 3 din beet. Bole Ram sakop tab. Bhai bin hoye na preet. And the core is that there is no friendship without fear. When the Prime Minister of India speaks to another head of state, friend or foe, that other head of state must know that in the oceans, somewhere in the dark depths of the ocean, somewhere close by, there is INS Arihant. And you lead from a position of fear. You lead from a position of power. Otherwise, the world does not respect this whole concept of Vasudhaiv Kutumbakam, that the world is a family. The world is not your family. Even to citizens as it is to the armed forces. Yes. So, Sushmita Sen, with due respect to the lady, she says that, we are artists and artists know no borders. I'm not an intellectual. I don't claim to be. I'm a person with average intellect. But I'm perceptive. I understand stuff. And that teaches you. And so I know stuff. इज्जत मोरालिटी की इज्जत अच्छे बन के नहीं होती. आप सोचें कि आप बड़े अच्छे हैं, हमने किसी पे हमला नहीं करा. और ये भी झूठ है. हाँ, हमने पिछले 78 साल में किसी पे हमला नहीं करा. तो चोलास, they went to Southeast Asia, Angkor Wat में मंदिर बनाए, चोलास ने बनाए, right? They conquered Sri Lanka. They reached as far as Maldives. If you look at Maharaja Ranjit Singh, the Khalsa Army's flag was flying over the fort in Kabul. If you look at General Zorawar Singh of the Dogra armies, he went right up to Tibet. तो ये कहना कि किसी ने अटैक नहीं करा, ये तो शर्म की बात है कि अटैक नहीं करा. आपका काम और क्या, अटैक करो ना उसको. जहां से आपको खतरा लगे, डोंट वेट. और दुनिया कहेगी, दुनिया का काम है कहना. People will try to influence, people will try to pressurize. In the end, what matters is how much violence you can inflict, how much power you have. That is what matters. आपके पास wealth कितनी है, आपके पास military might कितनी है, आपकी diplomacy कितनी है. When you talk about artists not being allowed in India और पाकिस्तानी channels ban करने चाहिए, इससे आपको क्या लगता है, like what difference will it make? Okay, so it is not just about one thing. If you look at it in isolation, it makes no difference. Right. It makes no difference. आप ban करो मत करो, उससे क्या terrorism बंद हो जाएगा या शुरू हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है. I am not saying ban Pakistani artists. What I am saying is there should be no connect between Pakistan and India. I am saying a comprehensive, artists are a very small part of it. Comprehensive. That number plus 92, which is Pakistan's country code. We as Indian citizens should not be able to contact a Pakistani and the Pakistani should not be able to contact you. It's as simple as that. Shatrubodh. If they are the enemy, then they must be punished.
if they are not the enemy and if the nation decides that no, they are friends, then let's stop Operation Sindoor and let's stop talking about Pahalgam. You know why the Pakistanis did Pahalgam or why they did 26/11? Because they know that you will not respond. Because they know that you will not punish. This time we punished them. It wasn't sufficient, but there was punishment. उनको पता है कि आप कुछ नहीं करेंगे. उनको पता है कि आप peaceful हैं और peaceful को harmless समझते हैं. And I can tell you, I can assure you, without getting into specifics now, the Indian Army is capable of exponential violence. इन्होंने पाकिस्तान में देखा नहीं है. They have not seen the kind of violence that our armed forces can inflict. पूरा पाकिस्तान धुआं हो जाएगा. That is the kind of firepower that these guys have. But yes, we live in a democracy. The army chief or the navy chief or the air chief or the CDS will do exactly what the government desires. किसी को शक नहीं होना चाहिए. But it's like a hammer. We are trying to use it like a toothpick. A hammer is meant to smash. The Indian army is a broadsword. It's not a scalpel. It's a broadsword. जब आप चलाएंगे फिर छटनी होगी. You use it, otherwise there will be no peace. आपको क्या लगता है पाकिस्तान रुक जाएगा? पाकिस्तान 3 महीने के बाद फिर 3 बंदे कश्मीर में मारेगा अगर आपने उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करा. Then they say पंजाब में चले जाते हैं, जम्मू में चले जाते हैं. ये सब ड्रामा चलता रहेगा. This is a never-ending fight. This is never stopped. It will never stop till you find the solution to this. Shifting gears, you of course speak with a lot of passion and experience. You've been a part of the Indian Armed Forces. Through my show Sandesh Se Aate, I had an opportunity to visit a few borders of India and see it for myself. When you say they don't know what our armed forces are capable of, I totally get it just by getting a glimpse of it. But you've lived that life. Yeah. So I want to begin by asking you, Major Arya, what drew you to the uniform? First of all, I'm from Satra Kumaon regiment. That is my identity. मैं Satra Kumaon से हूँ. We are a pure Kumaoni Paltan, which means that all the troops, all the Jawans are from Kumaon. तो हमारी pure Kumaoni Paltan है. My father was in the police. My father was an IPS officer. मैं थोड़ा ऐसे माहौल में था जहाँ पे वर्दी थी, तो मुझे भी लगा कि मैं देखना चाहिए. And all the friends and all, बहुत फर्क पड़ता है. तो ऐसा कोई मोटिवेशन था कि मैं फौज ही जाऊँगा, वो शुरू में नहीं था. वो बाद में हुआ मेरे. मैं SSB जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है वो अटेम्प्ट करा. मैं फेल हो गया. मैं दूसरी बार सेकंड टाइम में पास आया. So I was very relieved. And फिर एकेडमी ज्वाइन करी मैंने. अच्छा. एकेडमी में एवरीथिंग कोलैप्स्ड ऑन डे 1. इट वाज टेरिफाइंग फॉर मी बिकॉज मैं तो बड़े बाप का बेटा. मैंने कभी पानी का गिलास नहीं पिया अपने हाथ से लेके जिंदगी में. माय फादर वाज अ वेरी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड हमने तो बहुत सुख देखा था. एकेडमी में सडनली आई रियलाइज दैट द इंडियन आर्मी डजंट केयर वेयर यू फ्रॉम. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इसके बाप का नाम क्या है, ये कौन है, क्या है. तो मेरे बाल काट दिए, मुझे गंजा कर दिया. आई यूज्ड टू हैव दोस क्लिप ऑन इयररिंग्स आल्सो ना कान में. वो कान नहीं छेदते थे पर वो थोड़ा सा. दिस वाज इन 1993. तो उन्होंने मेरे बुंदे भी फेंक दिए और मेरे बाल काट दिए. आई वाज वेयरिंग अ वेस्ट, अ बनियान एंड शॉर्ट्स एंड बस वहाँ से ट्रॉमा शुरू हो गया इंडियन आर्मी का. इट वाज फर्स्ट 3 months वर वेरी बैड. There was not one single day in the first 3 or 4 months when I said that I don't want to go home because I was physically very weak. And there was a lot of disorientation because Madras, हमारे टाइम पे तो मद्रास होता था, चेन्नई तो अभी हो गया. हमारे टाइम पे तो मद्रास होता था. And this is Officers Training Academy. So my friends helped me, my colleagues, my course mates rather, they helped me. अगर वो लोग नहीं होते तो मैं नहीं कर पाता ट्रेनिंग कंप्लीट because मैं इतना कंफर्ट में पला था. Plus I had this, because I did my graduation from St. Stephen's College, Delhi. I had this thing in mind that, I'm from St. Stephen's College. The army didn't care about that. मैंने बोला यार इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, बाप के नाम का फर्क नहीं पड़ता, कॉलेज के नाम का फर्क नहीं पड़ता. मैं तो ऐसे बोलता हूँ, मैं तो वैसे बोलता हूँ. इंडियन आर्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता. ये तो चाबी पे चाबी दे जा रहा है. You get up at 4 o'clock in the morning and you start rolling. आपको पता ही नहीं होना हवा बना रखी थी वहाँ पे. My friends, my course mates were there. And Amardeep Singh Bali, he is now a serving colonel in the army. Okay. उसने बहुत हेल्प करी मेरी बाली ने. कर्नल AP सिन्हा, आनंद प्रकाश सिन्हा, ही इज फ्रॉम द बिहार रेजिमेंट. उसने बहुत मदद करी. एक अर्नब चक्रवर्ती आर्मर्ड कोर का, अभी वो कैलकाटा में, चक्कू बोलते हैं उसको. इन लोगों ने बहुत मदद करी. सो ऑल दीज गाइज टुगेदर हेल्प मी फेस द एकेडमी. मेरे बस का नहीं था कभी. मैं तो छोड़ छाड़ के भाग जाता. आपने से बताया ट्रेनिंग के बारे में, एंड मुझे भी ट्रेनिंग के लिए उनके साथ ही उठना पड़ता था. एंड आई वाज ऑलवेज लेट क्योंकि 6 बजे का टाइम होता था. आई वुड सी एवरीबडी इज देयर बाय 5:50, 5:55 or even 5:45 for that matter. In the academy, coming late, that is finished off in the academy, so nobody comes late in the unit. I'll tell you share a small anecdote. I was running late, and there were 2 ladies standing there, and I didn't know who they were. They asked me कि रास्ता क्या है जाने का or something. I forget something, and I spoke a little rudely to them because I was getting late and I was getting this thing. यार एक punishment मिलेगी late. So they might have told somebody, an officer might have heard. The next 3 days, I learned how to respect ladies. ये फट गया ना ये फट गया.
this came out like this. So even today, when a lady comes, you get up, you pull a chair for her, you open the door for her, you say yes ma'am, and that's it. You never ever raise your voice to a lady, you never ever disrespect her, because the consequences are very very harsh in the army. But ये आपको जो लगा ये उस वजह से है? Yeah, I was crawling on the road. I was like just wearing shorts. I was wearing boots, and I had nothing on top. And I was crawling with a rifle, and it was like 40 degrees. There was punishment given, and until today, I'm 52 years of age. I'm so always yes, ma'am. Wow, I think all men should go for this then. फौज में गलती माफी का स्कोप नहीं है. फौज में कि मैंने ऐसा सोचा, मुझे ऐसा लगा, मैंने ऐसा समझा, इसका स्कोप नहीं इंडियन आर्मी. Tell me what kept you going? क्योंकि ये मुश्किल है and I keep thinking कि अगर कई सारे लोग आते हैं आर्मी में और इतनी रिगरस ट्रेनिंग, इतनी टफ लाइफ, इट इज टफ राइट, और आजकल बहुत ऑप्शंस है बाहर कुछ काम करने के, बट तब भी वो कंटिन्यू करते हैं, वो रहते हैं. व्हाट इज द मोटिवेशन देयर? इट्स लाइक अ कॉलिंग. ये क्या होता है कि जैसे कई लोग बोलते हैं ना, यू गो टू वैष्णो माता, कहते हैं कि तभी जाते हो जब बुलावा आता है. आपने सुना है कभी ये? हाँ जी. है ना, कि कोई वहां पे गया मंदिर में जब बुलावा, ये कुछ लोगों को बुलावा आता है. मुझे ऐसा लगता है, दैट इज व्हाट आई फील. सम पीपल यू नो, एवरीबडी हियर्स but not many people heed. To do something which is bigger than yourself, to put your nation above yourself, and as they say in the army, to sign a check with a limit to up to my life. This you cannot equate it with a corporate job, because nobody would climb the peaks of Kargil even for 100 crore rupees, because then you have to survive to be able to spend that money and enjoy that money, right? You can buy a Rolls Royce certainly, but there's no point in buying a Rolls if you're dead. 99% of the Fauji's that I have come across on net, they have this very deep sense of mission. It's not like, अरे यार नौकरी है यार, अच्छा चले जाएं. It's not that. If orders are given, do this. A Fauji will not say कि मैम actually earthquake आ गई थी, 8 point on the Richter scale, सारी buildings collapse हो गई, इसलिए वो नो वाला चैप्टर है नहीं. हाँ, they're extremely committed, extremely dedicated. Okay, tell us about your first posting. कहाँ हुई थी? मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी 1994 में, सूरतगढ़ राजस्थान में. Oh, I've been there. मैं सूरतगढ़, बहुत गर्मी होती है वहाँ. नहीं, अभी कम होती है. अभी तो अनूपगढ़ शाखा से पानी आ गया और हरियाली हो गई. हमारे समय पे बहुत गंदी गर्मी होती थी सूरतगढ़ में. We used to go to महाजन, एक फील्ड फायरिंग रेंज है महाजन. वहाँ भी गए. महाजन. हाँ जी, वहाँ गए. It's quite terrible. In summers. And in fact, even when you mention about troops, ना आप बताते हैं जैसे कुमाऊं रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, is there a reason कि जो भी रेजिमेंट होती है वो रीजनली या उनकी मदर टंग सेम हो, ताकि ट्रूप्स में आपस में बॉन्डिंग हो? कोई इसमें रीजन है इस वजह से? एक जमाने में बहुत पहले, hundreds of years back, the officers used to be British and the troops used to be natives or Indians. फिर 1857 में जब स्वतंत्रता की पहली लड़ाई हुई, आफ्टर दैट द क्राउन टुक ओवर एंड दिस सिस्टम ऑफ रेजिमेंट्स वाज एस्टैब्लिश्ड. जो हम कहते हैं कि फर्स्ट मराठा, सेकंड मराठा, थर्ड मराठा, फोर्थ, जैसे फॉर एग्जांपल मराठा लाइट इन्फेंट्री टाइप, ये जो न्यूमेरिकल सिस्टम है ये ब्रिटिश है, इंडियन सिस्टम नहीं है. अगर आप इंडियन रेजिमेंट्स पहले देखें राजा महाराजाओं की, सो यू हैव लाइक फॉर एग्जांपल जोधपुर लांसर्स. ऑफिसर्स कैन बी फ्रॉम एनीवेयर, राइट. हमारी खुद की यूनिट में ऑफिसर्स में हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, everybody's there. But in my unit, 17 Kumaon, the troops are 100% Kumaon. I also met the 6th Command Regiment, अरुणाचल प्रदेश में मिली जब भी उनकी पोस्टिंग थी वहाँ पर, और उन्होंने वही 1962 की वॉर लड़ी थी. And you know, yeah, Battle of Along, yes, Jackie yes. 6th. Yes, you know them. और तगड़ी पलटन है, बहुत तगड़ी पलटन है. It's a very very, अरे कहाँ की याद दिला दी आपने. 6 Kumaon. I would be interested in knowing कि आपने छोड़ी क्यों? You know, you speak so fondly of those memories of being a part of the armed forces. बार-बार मुझे लंग की प्रॉब्लम हो रही थी. एक बार तो मैं पहाड़ से गिरा. आप पहाड़ से गिर गए? हाँ, बेवकूफ़ी की वजह से. उसमें कोई बहादुरी नहीं थी, उसमें कोई चाइनीज फायरिंग नहीं कर रहे थे, कोई सोल्जरिंग नहीं थी, उसमें बेवकूफ़ी थी. मेरे सामने जेसीओ साहब चल रहे थे, मैं उस समय ब्रावो कंपनी कमांड कर रहा था. जैसे कंपनी होती है अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा, आपको पता ही है, सपोर्ट हेडक्वार्टर में होता है. तो मैं ब्रावो कंपनी में था. मैं शिपकिला एक जगह है, करीब 14,000 फुट की ऊंचाई पर है, 13,500-14,000 फुट की ऊंचाई पर. मैं शिपकिला का कंपनी कमांडर था. तो क्या हो गया कि जब मैं शिपकिला मैंने कंपनी कमांडर वी गोइंग बैक, तो मैं बेस कैंप में बुलाया ना मुझे कि हमारे जो बटालियन हेडक्वार्टर, तो वहाँ पे बोला कि आप आ जाओ. तो मैं ऊपर से आ रहा था, तो बहुत स्नो पड़ रही थी, वेरी स्लिपरी एंड ऑल दैट, तो धीरे नीचे जा रहे थे. तो एक जगह जो मेरे सामने जो सूबेदार साहब थे, सूबेदार साहब रुक गए. 5 मिनट तक रुके रहे, अपनी वो स्टिक से कुछ देख रहे थे. तो मैंने बोला साहब क्या है, क्यों रुक रहे हैं, चलिए. मैं ये भूल गया था कि ही वॉज विंटर वॉरफेयर, एक विंटर वॉरफेयर का कोर्स होता है, उसमें ही हैड क्वालिफाइड एंड ही वॉज वेरी अकम्प्लिश्ड.
तो उन्होंने बोला था कि साहब कि प्रकृति के साथ पंगे नहीं लेने। अब उस समय हम भी यंग थे, थोड़ा सा खून ज्यादा गर्म था। आई स्किप्ड, इतनी पतली सी सड़क थी, मैंने बोला रुको, मैंने उनको पकड़ा और मैंने बोला कि मैं आगे जाके लीड करता हूँ, आप चिंता मत करो, और मैं ऐसे कर नीचे गिरा सीधा। So it was not like this, ये खड़ी ऐसी ड्रॉप नहीं थी, otherwise I would have been dead. It was slightly sloping like this. So I rolled down and went like this, and यहाँ पे एक पत्थर था, there was a big rock. So then I remember I came down like this and my feet hit the rock, and then there was this 2,000-3,000 feet below there's a river, Langshan Khabab, जो कि फिर इंडिया में हम लोग सतलज बोलते हैं नीचे, सतलज नदी, तो वो हिमाचल से ही आती है। So ये जो पूरा था इसका कि यहाँ पे तो मेरा, फिर मैं वहीं पे था। I was like for 4 hours or something like that, buried in snow. How cold was it? I don't know, मुझे मीठी मीठी सी नींद आ रही थी, ऐसे मुझे लग रहा था कि मैं सो जाऊंगा, और वहां से ये लोग चिल्ला रहे थे ब्रावो कंपनी वाले के साथ, सोना मत वरना उठोगे नहीं। Then it took a few hours for them to come down and rescue me, and then they rescued me, फिर मुझे ऊपर ले गए। तो उसके बाद मेरे इन्फेक्शन हो गया लंग में, और फिर मुझे ब्रोंकाइटिस और ये सब खांसना वांसना, फिर मैं थोड़ा सा ठीक हुआ, फिर मैं हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए गया गुलमर्ग, वो भी विंटर वॉरफेयर कोर्स, फिर ऊपर ले जाते हैं वो लोग, गुलमर्ग में भी हो गया। फिर एक बड़ा मशहूर अस्पताल है फौज में, एंड मैं आपसे, आप फौज के साथ शूट करती है ना, अगर आपने 92 बेस हॉस्पिटल नहीं देखा, सो यू हैव नॉट सीन द सोल ऑफ द इंडियन आर्मी। Why would you say so? मैं बता रहा हूँ, 92 बेस हॉस्पिटल को ऐसा कोई फौजी नहीं है जिसने JNK में सर्व करा हो, और जो 92 बेस हॉस्पिटल को ये ना बोले कि यार द फाइनेस्ट डॉक्टर्स इन इंडिया आर इन 92 बेस हॉस्पिटल। आप जब 92 बेस हॉस्पिटल के अंदर जाएंगी तो एक बहुत बड़ा उनका एक शो पीस है, द साइज ऑफ दीज 2 विंडोज कंबाइंड, राइट? उनका कैसे बनाया है, नॉर्मल प्लास्टिक से, और उसके अंदर मेटल के पीसेस हैं, दो आर एक्चुअली बुलेट्स टेकन आउट फ्रॉम सोल्जर्स बॉडीज, एंड दे हैव डिस्प्लेड देम देयर नेम ऑफ द सोल्जर यूनिट, नेम ऑफ द सोल्जर यूनिट। यस, एंड देयर इज अ लेजेंड अबाउट 92 बेस हॉस्पिटल, इफ यू कम विद अ पल्स यू विल गो बैक अलाइव, एंड दैट रिकॉर्ड रिमेन्स अनब्रोकन। इफ एनीबॉडी, कितनी भी इंजरी हो उसकी, उसको कितना भी हो, पीपल हैव स्टेप्ड ओवर माइंस विद देयर गट्स हैंगिंग आउट, यू नो, हॉरिफिक इंजरीज, एंड दे गो आउट स्टैंड। That is the magic of 92 बेस हॉस्पिटल। मंदिर है इंडियन आर्मी का, आप जाइएगा कभी, इट्स इन बदामी बाग कैंट। ओके, श्रीनगर एयरपोर्ट से 25 मिनट दूर है। अच्छा, हाँ, आप बदामी बाग कैंट में जाइए, और बदामी बाग कैंट के अंदर ही, यू स्टे एट बदामी बाग कैंट, बट सिंस यू आर शूटिंग विद द आर्मी, यू मस्ट शूट विद द 92 बेस हॉस्पिटल। छोटा अस्पताल है, बड़ा नहीं है वो, बट आई ऑफन से दैट 92 बेस हॉस्पिटल इज लाइक सचिन तेंदुलकर, यू नो, हाइट में छोटा है, बट आई मीन इट्स। तो आप गए थे वहां पर? मैं वहां पे भर्ती हुआ हूँ, मैं I was there. When I came back, when I was evacuated from Gulmarg, I had very low pulse, and I'll remain forever indebted to the doctors and you know the doctors wear combat dress, so आपको पता नहीं लगेगा ये डॉक्टर है कि कौन है, because everybody wearing a combat dress, everybody is in uniform. मैं आपसे जानना चाहूंगी which has been your toughest posting till date, which you would like to share with our viewers? Toughest posting was in Punch, along the वही पुंछ जहाँ भी अटैक हुआ है। I was company commander, एक जगह गली मैदान पुंछ में, तो हमारे टाइम पे 25 इन्फेंट्री डिवीजन का हिस्सा हुआ करता था। अब पता नहीं कुछ चेंज कर दिया हो कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन आई वाज अगेन ऑन टॉप ऑफ अ माउंटेन, समथिंग विद मी एंड माउंटेन्स, और टंगे रहते थे हम लोग तो माउंटेन में। तो वहां पे ना एक पाकिस्तानी पोस्ट थी, कोबरा पोस्ट से वो पाकिस्तानी सोल्जर पता नहीं क्यों फायर करता था, उसको क्या था, उसकी बीवी से लड़ाई थी, मुझे नहीं पता, ही यूज्ड टू गेट इरिटेटेड, जब भी इरिटेटेड हो सवेरे शाम एक बस्ट हमारी। अब बोला इसको क्या हो गया, कह रहा साहब कुछ नहीं हुआ, उसको शाम को फिर करेगा। रैंडमली कभी भी शूट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका सीज फायर इन इफेक्ट नहीं है, so there are times when there are snipers along the line of control, and you see the enemy, and it's a given that you will kill him if there is no ceasefire along the line of control. If it's open, the line of control is about 760 kilometers. Yeah. It extends from Ladakh. Right. Most of it is in Jammu. Okay. Some of it is in Valley. So Pir Panjal. Yes. North of Pir Panjal is Kashmir. Yeah. South of Pir Panjal is Jammu. Yeah. And the extended area of the line of control is in Ladakh, where the line of control meets the line of actual control. So are there killings that never get reported also? I guess हमारे टाइम पे तो कभी रिपोर्ट होती नहीं थी, क्योंकि अभी तो सोशल मीडिया आ गया, इतनी चीजें आ गई हैं। अब आर्मी has also got a little media savvy and all that. Yeah. हमारे टाइम पे तो मीडिया ही नहीं था, तो फौज कहाँ से मीडिया savvy होती बेचारी, कुछ पता ही नहीं था हम लोगों को, and we were just company commanders and all that. So अभी तो फेंस है, so you know where the line of control is. हमारे टाइम पे कहते थे अच्छा ये 3 पत्थर हैं, ये पेड़ है, ये पानी है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, you have to defend this. वो हमें इतना ही पता था, हमें इसके दाएं बाएं ये पता था कि ये हमारी कंपनी है, या अगर ये if this is the rightmost edge of our unit AOR, then फिर कोई और यूनिट है। वो भी पहाड़ों के ऊपर, right? The terrain is so it's difficult to gauge. हाँ, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। आजकल तो फिर GPS आ गया और कई सारी चीजें आ गई हैं। हाँ जी। हमारे टाइम पे तो मैं तो गलती से एक बार चला गया था पीओ के, तो मुझे पता नहीं था, वो 2 नाले थे, तो
बड़ा नाला था, दैट वाज दी लाइन ऑफ कंट्रोल। जमीला था नाले का नाम। एक को हम कहते थे छोटा जमीला, उसका नाम कोई छोटा मोटा नहीं था, हम लोग लोकली नाम रख दिया, उसका नामकरण कर दिया। तो वो छोटा जमीला और बड़ा, तो हम तो बीच में से आए, तो मुझे नहीं पता था कि, मुझे ये लग रहा था कि पहले छोटा पार करेंगे फिर बड़ा पार करेंगे। हमने बड़ा पार कर दिया, हमें लगा कि छोटा है कुछ पाएंगे। हम चलते गए, देन वी डिस्कवर्ड कि वापस चलो। पकड़े नहीं गए ना, थैंकफुली। पकड़े जाते तो पाकिस्तानी ट्रीट प्रिजनर्स वेरी बैडली। पाकिस्तानीज हैव दिस हैबिट दैट उनमें ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि निहत्ता है, जैसे हम में ये कॉन्सेप्ट है इंडियन आर्मी में कि निहत्ता है, निहत्ते पे वार नहीं करना। जिसके पास हथियार नहीं है ना, उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, उसके हाथ बांध लो, बट उस पर वार नहीं करना। पाकिस्तानीज डोंट हैव दैट मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट। दे विल स्पेशली अटैक यू व्हेन यू डोंट हैव वेपन्स। अरे मेरी तो कहानियां ही ऐसी हैं ना। ये पू में था, हाई एल्टीट्यूड में पोस्ट में तो नहाया नहीं मैं। अच्छा, उस जमाने में नहाने का कोई शौक नहीं, ऐसे नहीं कि बाकी यार बहुत अच्छी वीडियो थी और एक पॉडकास्ट था मेजर साहब के साथ और काफ़ी चीज़ें ना, एक शो तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, 30 मिनट हो चुके हैं और नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखेंगे। लेकिन जो एक सीज़ फायर है ना भाई, उसकी जो एक कहानी है ना, वो बहुत एक अधूरी है। किसी को एक कोई पता नहीं है कि क्या एक इसके पीछे एक सीन हुआ है और किसने एक सीज़ फायर के लिए एक उधार लगाई है कि यार सीज़ फायर हो जाए, इससे आगे एक ज़्यादा चीज़ें ना अब एक बढ़ती जाए। अब अगर पाकिस्तान के जो एक टॉप के एनालिसिस हैं और टॉप के जो भाई मीडिया पर बैठे हैं ना लोग, वो ये बोलते हैं कि इंडिया पहले गया अमेरिका के पास। पीएम मोदी का भाई एक कॉल आया, डॉक्टर एस जयशंकर ने एक रिक्वेस्ट की है, बीच में अफगानिस्तान को डाला और अमेरिका को बोला है कि आप सीज़ फायर कर दें, इससे आगे चीज़ें बहुत एक बिगड़ जाएंगी। तो इसलिए दोनों कंट्री भाई एक एग्री हुई हैं, तो उन्होंने एक सीज़ फायर कर दिया और इंडिया ने पाकिस्तान का ये एक तरला मिन्नत मान लिया एक सीज़ फायर का। तो सीज़ फायर भाई एक क्लियर हो गया। बाकी एक ऑफिस उनका काफ़ी एक अच्छा है, एक टीम काफ़ी बड़ी है और सारी चीज़ें भाई उन्होंने मतलब कि जो एक मेमोरीज थी उनकी वो उन्होंने एक रखी हुई है फ़ोटो के ज़रिए और सारी चीज़ें बताई भी हैं कि कहाँ कहाँ भाई उन्होंने मतलब कि सर्विस की है इंडियन आर्मी में, और काफ़ी अच्छा था उनका। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट था। लेकिन ये कि एक मेजर साहब की जो लाइफ है ना, उसके बारे में एक जानने को मिला कि कहाँ कहाँ उनकी पोस्टिंग हुई या कहाँ कहाँ उन्होंने ट्रेनिंग की। देखे जहाँ उन्होंने बताया है ना भाई, पुंछ हो या एक जिस जगह उनकी भाई पोस्टिंग थी, वो जगह काफ़ी ख़तरनाक थी, मतलब कोई आम सी नहीं थी और ट्रेनिंग भी उनके लिए तो काफ़ी हार्ड थी उस वक़्त। और वो यही चीज़ें एक बता रहे हैं। लेकिन वापसी क्या उनके आज पता चला कि भाई उनको एक काफ़ी ज़्यादा एक दिक्कत आ रही थी, जिसकी वजह से ना उनको एक आर्मी से बाहर होना पड़ा, वरना भाई उनको एक और ज़्यादा स्ट्रगल करते तो और ज़्यादा मुश्किल आनी थी। जैसे वो बता रहे हैं कि एक ऊपर से गिरे थे, अगर ऊपर से वो आगे पत्थर नहीं होता तो फिर मेजर साहब के लिए काफ़ी ज़्यादा भाई मुश्किल होनी थी। लेकिन पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा था। नहीं ऐसे है, एक तो उनकी लाइफ का काफ़ी पता चला है। बेसिकली हमारे इधर के लोग जो है ना, इनके बारे में यही सोचते हैं कि ये वहाँ से भागे हुए हैं और ये इनकी कोई ख़ास सर्विस नहीं है। जैसे ही उन्होंने एंट्री ली है, साथ ही इन्होंने छोड़ दिया था, तो इस हवाले से। लेकिन पीछे भाई एक खुद तो वो एक अच्छे घर से हैं, मीन कि उनके वालिद साहब जिस तरह वो बता रहे हैं कि ऑलरेडी वो ऑफिसर थे, अच्छे IPS ऑफिसर, और उसके अलावा उन्होंने एक अच्छे माहौल में उनकी परवरिश हुई है, जो कि मतलब एक ज़्यादा एफर्ट करने वाला नहीं था। लेकिन जब वो गए उन्होंने बहुत सारी एक मुश्किल काटी, लेकिन उसके बाद एक अच्छी पोस्ट के ऊपर वो टाइमली पहुँचे। लेकिन बाद में जो लंग्स की उनकी बीमारी थी ना, वो उनको मतलब आगे उसने सर्वाइव नहीं करने दिया। लेकिन फिर भी अब भाई एक बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ है और एक अच्छा उनका ऑफिस है। और उसके अलावा बाकी भाई ये एक जो मतलब उनका है ना, ये जो स्टार्ट था सीज़ फायर वाला, तो वो अभी जो मतलब कुछ रिपोर्ट्स वगैरह या जो एनालिटिक्स या इस तरह की कोई आती है ना, उसमें तो यही कह रहे हैं कि भाई अब 1% भी चांस नहीं है कि सीज़ फायर या इंडिया पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट दोबारा शुरू होगा। लेकिन ये कुछ नहीं कहा जा सकता भाई। एक हमारे तो खुद एक इनके ऊपर कोई यकीन नहीं किया जा सकता, ये किसी वक्त कुछ भी एक स्टार कर सकते हैं। लेकिन अगर सीज़ फायर है तो भाई फ़ायदा ही है, क्योंकि हम तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं। देखो ना, एक मेन जो चीज़ हुई है ना, जो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा आने वाले टाइम में नुकसान देगी, वो है सिर्फ वो पानी वाला जो सीन है, वो उसके ऊपर कोई इन्होंने बात नहीं की, कोई उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करवाया किसी किस्म का। ठीक है, सीज़ फायर हो गया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन
मनवाया क्या है, इन्होंने भाई कुछ भी नहीं मनवाया, जो कि मेन चीज़ मनवाने वाली थी। और हो सकता है एक उसके ऊपर आके आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए हालात कुछ खतरनाक हो। बाकी अच्छा था यार। बाकी यार देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।